everyone, this is Khan Ajra and I welcome you all in my YouTube channel. As you all know that day before yesterday the result for NDA and CDS has been declared. Okay, so today I'm here to help you out that what you have to do after your results. As I got the messages of many students that, ma'am, how should we prepare for the SSB? Or what next after clearing the written examination? Which are the areas we should focus on? So today I'm here to tell you all the details. I'm here to help you so that I'll be able to contribute in your journey while going for the SSB. So, first of all, I would like to congratulate all those students who have cleared examination, and I would also like to congratulate to those students who weren't able to clear this examination, because appearing for examination खुद में ही एक बड़ी बात है. You appeared for the examination, you put forward your all efforts, you wrote the paper, because at least we tried, right? And that is a big thing. If you are trying, then hats off to you, because try, definitely you will get succeed. Okay, so it's not like कि अगर इस एग्ज़ाम में फेलियर मिला है then I'm not worthy of anything, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा. No, definitely you are a warrior, because you have written an examination and that is a big deal in itself. So I congratulate all those students who even haven't cleared the examination, because you did well. I'm very proud of you. Just now put some more efforts, like start reading, start studying from the very first start. अभी टाइम का वेट मत करो कि 1-2 महीना रहेगा तो we will start studying. Okay, अभी से you focus on your written की preparation and I am there for you. I'll help you whatever you want, and any way I can help you, because I am here to help you only. Okay, so this video is mainly for the people who have cleared the CDS examination and NDA examination. Okay, after that I'll help the people who haven't. Okay, because more power to them as they are trying. So definitely I'm definitely sure, 100% sure, that this time if you'll start right now, definitely you are going to make this examination. So don't worry, just start studying and let me know in which area you want to help, like in which area you want help, so that I can help you. So for the people who have cleared the CDS examination, I'll tell you that you are going for SSB, right? So you have to prepare yourself for the SSB. And first thing which you have to do is read newspaper. Reading newspaper is very important. Okay, for SSB, like you are going for SSB, तो your knowledge, your English, like your GD, your lecture topic will be all covered in the English. तो अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, मतलब क्या, इफ़ यू आर गोइंग फॉर SSB तो आपको पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपको रोज़ क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर. आपके लिए ऑफलाइन है, आपके लिए ऑनलाइन है, जो भी आपके लिए है, बट आपको पढ़ना है. एटलीस्ट यू हैव टू गिव 30 minutes to reading newspaper, because it's very important. Reading newspaper is very important. Second thing which I'll be focusing upon is improving communication skill. I have already made a video on this, that how you can improve your communication skill. Okay, so agar if you still want, you can go and check that video, क्योंकि for the SSB purposes communication, good communication is very important. I'm not saying, as I have also dictated in my video, that high level का English नहीं चाहिए,
बट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट। आप कम्युनिकेट करने चाहिए असेसर्स के साथ, उसको समझ आना चाहिए आपकी, तो दैट इज़ इनफ फॉर द एसएसबीस, ओके। बट कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे इम्प्रूव होगा? यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस डेली, ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। कितना प्रैक्टिस करना है आपको? आपको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करना है। So, आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। आपको वाइल टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर सिबलिंग्स, तो उस टाइम भी यूज़ एज मच इंग्लिश एज यू कैन इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन योर एसएसबी, ठीक है। दैट इज़ द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग क्या है? फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसएसबी के पर्सपेक्टिव से। इफ़ यू विल बी फिजिकली फिट, इफ़ यू विल ट्राई टू रन, रोज़ आप रन करने का कोशिश करोगे तो इट विल हेल्प यू इन एसएसबी। एक तो आपको ये फ्रेश रखेगा। सेकेंड थिंग, एक ये तो आपको आइयो जब वेन ही विल आस्क यू अबाउट योर स्केड्यूल, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। while coming to the SSB thing, study schedule is very important because they are going to ask you your schedule। और अब तुम सच्चाई नहीं बोल सकते, सर जी मैं तो मकरा मार रहा हूँ, सुबह से सोता हूँ, शाम में सोता हूँ, फिर उठता नहीं हूँ, फिर जाता हूँ दोस्तों के बाहर, मतलब कुछ बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो योर स्केड्यूल शुड बी बैलेंस। आपको ऐसा स्केड्यूल बनाना है कि यू शुड बी बैलेंस। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, बिकॉज झूठ नहीं बोलना है वहाँ पर असेसर से, ठीक है। आईयू इज़ लाइक वेरी एक्सपीरियंस्ड, वो ऐसे खाली उधर कुछ ना करके नहीं बैठा है, ठीक है। तो ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस। तुम झूठ बोलोगे तो पकड़ लेगा तुमको। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू कि वो अपना एक स्केड्यूल बना लेंगे, ठीक है, फिर बोलते भाई मैं तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, फिर अपना स्केड्यूल बना के वो करता ही नहीं है वो चीज़ें, और जाके वहाँ पे बोल देते सर मैं तो रन करता हूँ, फिर पढ़ता भी हूँ, रीडिंग भी करता हूँ। तो फिर जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है ना, रनिंग क्या है, कितना टाइम करते हो, कितने बजे होते हो, उसके मुंह से ना कुछ अंश निकल जाता है कि जिससे लगता है कि हाँ भाई उसका डेली स्केड्यूल नहीं है। सो आपको ना अपना स्केड्यूल, यू हैव टू फॉर्म योर स्केड्यूल इन दैट वे विच विल हेल्प यू इन योर एसएसबी। मतलब आपको असेसर्स को डिसीव नहीं करना पड़ेगा। वाइल आई विल आस्क यू टेल मी योर स्केड्यूल, तो यू शुड बी प्रिटी कॉन्फिडेंट इनफ दैट येस दिस इज माई स्केड्यूल एंड आई डू फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है। और फिर चाहे वो कुछ भी पूछ ले तो तुम ब्लफ भी नहीं करोगे, ठीक है। वो चाहे तुमसे कुछ भी पूछ ले उसके रिलेटेड तुमको बोलना आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग दैट थिंग। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, दैट जो आप चीज़ करोगे ना इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसलिए ट्राई टू शेप योर पर्सनालिटी, ओके, ट्राई टू शेप योर पर्सनालिटी, शेप योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी लाइक ऑफिसर्स, ठीक है। ऑफिसर्स की जैसी पर्सनालिटी होती है वैसे उसको शेप करो। व्हाट आई वांट टू से इज दैट देयर आर 15 OLQs, राइट, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है। तो ट्राई टू एम्बाइब दोज क्वालिटी इन योर डेली लाइफ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो क्वालिटीज़ होती है, हाँ कुछ लोगों में पहले से ही होती है, बट यू आर गोइंग फॉर SSB, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि वो सब क्वालिटीज़ आप में पहली हो। किसी में नहीं हो सकती, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, करेज की कमी होती है, किसी चीज़ में स्पीकिंग का प्रॉब्लम होता है, किसी चीज़ में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। सो यू हैव टू रीड अबाउट द OLQs, देन यू हैव टू सी ओके विच थिंग इज़ इन माई डोमेन, लाइक मेरा कौन सा अच्छा पार्ट है। लीडरशिप में ओके आई एम गुड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई एम गुड, ओके मेरा थोड़ा हैंड कम है इंटेलिजेंस पे, तो लेट्स वर्क ऑन इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मेरा कोई कम्युनिकेशन स्किल पे हैंड मतलब अपना हाथ ढीला है, तो लेट्स वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। तो यू हैव टू फ्रेम लाइक दिस, योर स्ट्रैटेजी शुड बी लाइक दिस कि येस मैं SSB के लिए जा रहा हूँ, सो आई विल बी, मतलब मैं 100% दूंगा, तो यू हैव टू गिव योर 100%। सो रीडिंग OLQs इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 OLQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एनी हाउ यू हैव टू रीड इट, ठीक है। तो ये आपको करना है। और आपको ना क्या करना है, रीडिंग बुक्स,
रीडिंग बुक्स हैबिट डालो। आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में आप एक किताब पढ़ लो। इट्स लाइक कि इफ़ यू आर लाइक आपकी बहुत रीडिंग की हैबिट नहीं है, कुछ चीज़ की हैबिट नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप ना 3-4-5 पेज दिन में पढ़ लो, ठीक है। 3-4-5 पेज दिन में पढ़ लो एंड इट विल हेल्प, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रीडिंग बुक्स विल ऑल्सो हेल्प। अगर आप 3-4 पेज लाइक पढ़ रहे हो उसमें, तो इट विल ऑल्सो हेल्प। मतलब रीडिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 4 क्या है, अपना एक कोई हॉबी बना लो अपनी। अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी हॉबी, ठीक है, कोई हॉबी अपना बना लो। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो 1 घंटा, आधा घंटा, चाहे आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, चाहे आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, वॉट एवर इट इज़। तो एक ना पूरा अपना प्रॉपर हॉबी बना लो सो दैट कि आप ना लाइक ईजिली वो चीज़ को कर पाओगे। 4 चीज़ क्या है, और भी ना कुछ एक्टिविटीज़ करो, लाइक कोई ब्लॉग लिखो, ठीक है। इफ़ यू आर अ व्लॉगर दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट व्लॉग शुड बी कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन से दैट सर आई एम अ पेंटिंग करता हूँ, कुछ लाइक दैट। तो ये चीज़ें ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSB. When it comes to SSB, co-curricular activities play a very big role, क्योंकि ऐसा बंदा ना शुड बी ऑलराउंडर। इट्स नॉट लाइक पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। अगर आप पढ़ाई कम कर रहे हो, बट यू शुड बी ऑलराउंडर, दैट इज़ ओके फॉर देयर सिस्टर्स। बिकॉज आर्मी में, डिफेंस में बंदा क्या चाहिए, ही शुड बी ऑलराउंडर। ऐसा नहीं किताबें पढ़ पढ़ के पागल हो गए, ओके। एंड जब किताबें नहीं पढ़नी है, यू हैव टू रीड, यू हैव टू डू एवरीथिंग। सिंपल सी बात है, यू हैव टू डू एवरीथिंग। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको हंसना भी है, आपको खेलना भी है, आपको क्या है थोड़ा बहुत मस्ती भी करना है, आपको सीरियस भी रहना है, आपको पढ़ाई भी करना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वाइल यू स्टार्ट अबाउट प्रिपरेशन ऑफ SSB, ठीक है। देन कम्स बहुत चीज़ें, बट ये जो है ना, दिस इज़ बेसिक। तो you have to start from these things, and do let me know if you need any help while following this schedule. If you need any help कि मेरे को ना like इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, what should I add, what should I do, and tell me something more कि जिसके बारे में you want to know, like you want to say ma'am please make a video on this thing, like I'm facing issues. Please be free to tell me your issues. I am just here for the helping purpose. To be very very honest, I just want to help because I know people are facing some issue. Some क्या बहुत सारे issues है people do face while going for the SSB. बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ SSB, बीइंग गोइंग फॉर द SSB, तो मेरे को पता है लाइक देयर आर कितना क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, आई एम देयर फॉर यू, मैम इज़ देयर फॉर यू, एंड चिल रहो, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। अपना 100% दो। The thing that matters is while you are giving 100% or not. If you are giving 100% और फिर ऊंच नीच हो जाता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज आई डू बिलीव दैट फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स सक्सेस, बट यू हैव टू ट्राई, राइट। अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग, यू आर नॉट पुटिंग अप योर एफर्ट्स, देन डेफिनेटली ना वो फेलियर तो उसको देख के तुम डूब के मर जाना चाहिए, ओके। दैट इज़ ऑल आई कैन से। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, गिव योर बेस्ट, बिकॉज प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक यू वॉन्ट हार्ड वर्क, तब तक आप सक्सेस नहीं लोगे, ठीक है। तो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड अंटिल यू मेक इट, ओके, बिकॉज यू हैव टू गो टू द एकेडमी, ठीक है। आपको क्या है, एकेडमी जाना है, राइट। सो थैंक यू सो मच for listening me so patiently. Do let me know whether this video helped you or not. Definitely it will help you a lot, I'm not saying, but still do let me know in the comment sections आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, किस में हेल्प चाहिए. Definitely I am here for help you, and definitely I'll help you. Thank you so much guys, wishing you all the very very best.
आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दैट प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। हम क्या करते हैं, लाइक हम ना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं आफ्टर रिजल्ट्स, जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, या जिनका हो भी रहा है। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल अरे SSB है, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। नहीं यार, रुको मत। अभी जिनका रिटर्न नहीं हो बोलेंगे थोड़ी, रुको मत, रुकना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू डोंट हैव टू स्टॉप। जब तक कामयाबी नहीं आती है आपको रुकना नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप। So put forward your point, your efforts. Don't give up. अच्छे से करो. All the very best. All the very best. Be all rounder. Do everything. I'm not saying कि एक ही चीज़ करो. Do everything and enjoy. Enjoy this journey. Enjoying this journey is very important. Okay. So thank you so much. मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी. But do let me know in comment sections कि क्या चाहिए आपको, लाइक व्हाट डू यू वांट, मतलब मेरे को वीडियो किस पे बनानी चाहिए। एंड प्लीज़ हो सके तो डू शेयर दिस वीडियो सो दैट इट विल हेल्प एज मैनी पीपल एज इट कैन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रॉ इन्फॉर्मेशन। आई एम नॉट शेयरिंग अ इन्फॉर्मेशन जो मेरे को फ्रेम कराया गया है। दिस इज़ वॉट आई हैव अंडरस्टूड द SSB and in my perspective this is very authentic information because I have been the part of SSB. मैं SSBs गई हूँ, I got recommended, ठीक है, and I know कि क्या चीज़ें वो देखते हैं पर्सन में, ठीक है। I have seen many students, many girls getting recommended, so it will help you a lot. So do like, share and subscribe to the channel if you are new, and I would say that if you want and if you find this video very helpful, so please do share this. Thank you guys, thank you so much for listening so patiently.